Good afternoon, my dear students. How are you? ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ BCom ਫਸਟ ਈਅਰ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਅ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। Define contract and discuss the essential elements required for the formation of valid contract. Long question ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲਾਸਮੇਟਸ BCom ਫਸਟ ਈਅਰ जो फस्ट ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ that all of you have notebooks, pen, pencil before attending class. Indian Contract Act 1872. It came into force on 1st September 1872. 1 ਸਤੰਬਰ 1872 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਆ ਜੋ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਹੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ 1872 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2H ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਸਿਬਲ ਬਾਈ ਲਾਅ। ਸੈਲਮਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ रूल्स रेगूलेशंस और एग्रीमेंट डिफाइन करता एंड क्रिएट करता है। सिंपल वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इनफोर्सिबल एट लॉ इज द कॉन्ट्रैक्ट। सो इत्थों ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕੰਟਰੈਕਟ। So definition of contract ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ start ਕਰੋ। You will not write the definition by any writer only. You have also explain or write the definition as per section or in simple words. Definition ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ information fact based add ਕਰੋਗੇ question ਦੇ answer 'ਚ। Next ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ word ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ definition ਕੀਤੀ ਆ agreement enforceable by law। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਐਟ ਲਾਅ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 2E ਇਹ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ 1872 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਵਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਔਰ ਸੈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ forming consideration for each other is known as an agreement। कोई भी प्रॉमिस वादा ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸਮਝੌਤਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ। ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਰਿਟਰਨ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਔਰ ਸੈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ 1872 ਸੈਕਸ਼ਨ 2E। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤਾ ਆਫਰ ਪਲੱਸ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇਗੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇਗੀ ਦੈਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ देयर। ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਐਟ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਐਟ ਲਾਅ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ। There will be not only the relation which are purely social or domestic in nature। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਲੀਗਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਤੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਐਟ ਲਾਅ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ all contracts are agreement but all agreements are not contract explain why। क्वेश्चन पेपर जिवें लिखिया दिखाया सी उवें भी क्वेश्चन आ जाता। इस स्टेटमेंट का मतलब आ कि सारे कॉन्ट्रैक्ट ने जिहड़े वो एग्रीमेंट हुंदे आ बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुंदे क्योंकि आपां पढ़ियागा कि एग्रीमेंट दे लई तां जस्ट ऑफर एंड एक्सैप्टेंस चाहिदी सी बट कॉन्ट्रैक्ट दे लई आपां नूं एग्रीमेंट इनफोर्सेबल एट लॉ भी चाहिए है। तां करके एग्रीमेंट ने जोड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते सारे पर सारे कॉन्ट्रैक्ट ने जोड़े एग्रीमेंट होंगे।
For long question at least you have to write 5 to 6 pages. So ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ essentials ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। essentials of valid contract ਆ ਜੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ essentials ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਸਟ ਹੈ ਆਫਰ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ। ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲॉफुल ਆਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲॉफुल ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਆਫਰ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਆਫਰ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन है कि जो सोच या नीयत है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ doesn't mean that there is a contract. For contract there must be a legal relation between the parties. सेम ही लिखा है जो आप लाइन पीछे पढ़ी है। नेक्स्ट है कि एग्रीमेंट मस्ट का मतलब कि कंपल्शन है। एग्रीमेंट लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहा बिटवीन द पार्टीज, then there will be formation of contract. नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन तो दसिया सी समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लीगल। इट मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जो कानून बने हुए नेगे उन्होंने अपोज ना करन पार्टी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी दे विच आपां एग्जाम्पल लवांगे। फॉर एग्जाम्पल एक परसन है ए, वो बी नूं ऑफर दिंदा है कि तू अपने बच्चे नूं पढ़ाई ना करा, मैं तेनों 5 लाख रुपया दूँ। ऑफर की सी तेनों 5 लाख रुपया दूँ, ए वालों दिता गया। हुण बी ने एक्सैप्टेंस ते कर ली, मान लो हाँ मैं पढ़ाई नहीं कराऊंगा अपने बच्चे नूं, तू मैनूं 5 लाख दें। कुछ सालों बाद बी डिमांड करदा ए तो 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपये की डिमांड की है जदों बी ने ए तो, क्योंकि ए दे कहण ते बी ने अपने बच्चे नूं पढ़ाई नहीं कराई, ए दे ऑफर नूं बी ने मन्निया है। ये कोई लॉफुल कंसीडरेशन नहीं सीगा। ये कॉन्ट्रैक्ट दे विच लॉफुल कंसीडरेशन नहीं सी कॉन्ट्रैक्ट दे विच। हाँ इत्थे इहदे उल्ट जे ए ने 5 लाख रुपया देना सीगा बी नूं, बी ने उहदे बदले नूं अपना घर देना सी, बेचना सीगा। बी ने सारे कागज पेपर्स ने जिहड़े अपने घर दे देते इहनूं, बट ए पैसे नहीं दे रहा। उत्थे वो कोर्ट की हैल्प लै सकदा बी, बिकॉज इहदे विच लॉफुल कंसीडरेशन सीगा। बी उहनूं हाउस हैगा वो सेल कर रहा सी एंड ए उहदे लई उहनूं पैसे दे रहा सीगा। नैक्सट पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। धिरां दी समर्था। पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कंपीटेंट। कंपीटेंट हुंदा योग टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज ने जिहड़ियां कॉन्ट्रैक्ट दे विच एंटर करन दे योग होणीआं चाहीदियां ने। हुण इत्थे किहड़ी योगता दी गल कीती जा रही है? पार्टीज माइनर ना होण जो कंट्रैक्ट दे विच इनवॉल्व ने, अनसाउंड माइंड ना होण क्योंकि जो इंटेंशन नाल कॉन्ट्रैक्ट किया जाऊगा इत्थे परसन नूं समझ ही नहीं आऊगा। लॉ द्वारा डिसक्वालीफाइड ना हो। इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है अगे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का, वो आप नैक्सट क्लास दे विच करांगे। नैक्सट एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट। कंसेंट हुंदा है मर्जी। फ्री कंसेंट का मतलब है इत्थे कि जदों सहमति दे रही हैगी एक पार्टी दूजी नूं, उहदे ते ना कोई दबाव ना होवे, उहनूं धोखे दे विच ना उहदे तो सहमति लई जा रही होवे, जां जो फैक्ट्स नेगे उहनां नूं डिफरेंट तरीके नाल रिप्रजेंट करके ना दूसरी धिर दी कंसेंट लेती जा रही होवे। जे ये एलीमेंट्स जिहड़े हैगे मिसटेक, अंडर इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रजेंटेशन ये इनवॉल्व ने कंसेंट दे विच तां आपां नूं फ्री कंसेंट नहीं कहांगे। सो इन्हां सारियां तो कंसेंट अफेक्टेड नहीं है जो ऊपर पॉइंट्स कीते ने, फिर ही उसनूं फ्री कंसेंट कहा जाएगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट उद्देश है जो इकरारनामे का कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल ते लीगल होना चाहिए, फिर ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मन्निया जाएगा। कोई भी इलीगल काम करने दे लई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ना किया जाए। अगर इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट पॉइंट करेंगे एसेंशियल्स दे विच पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो ऑफर एंड एक्सैप्टेंस पार्टीज दे विचकार है जां जो प्रोमिसेस एक पार्टी दूसरी नाल कर रही हैगी उन्हां नूं परफॉर्म करन जां उन्हां दे होण दी पॉसिबिलिटी होवे। एग्जाम्पल के तौर पर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस दे विच जिवें आपां लॉफुल कंसीडरेशन च एग्जाम्पल लैती सीगी। मान लो ए है जो बी तो घर खरीद रहा बट ए बी नूं कहंदा हाँ मैं तेनों पेमेंट पूरी फेयर ही करूँ अगर तू ये जिहड़ा घर मैनूं बेचेगा इहदी छत ते उपरों तारे तोड़ के रख दे, तां इह तां इंपॉसिबल। सो इत्थे एवें दी कोई बेतुकी शर्त नहीं होनी चाहिदी
जे कॉन्ट्रैक्ट नू वाकई वैलिड बनाना है। इसी साड़ियाँ एसेंशियल्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंदा गा कॉन्ट्रैक्ट दा, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और व्हाट आर द वेरियस एलीमेंट्स टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ਜਾਂ फिर इस तो बिना तुहानू पिछे मैं एक टैगलाइन दिखाई सीगी, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट नॉट ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये क्वेश्चनस आउंदे ने जो स्लाइड्स तुहानू प्रेजेंट कीतियां ने अज दी क्लास दे विच, ये तुहाडा सारे आंसर दा मटीरियल होएगा। हुण आपां एसेंशियल्स लई शॉर्ट ट्रिक करदे हां। ओए ILCC फ्लॉप। हुण देखदे हां इहदे चों पॉइंट्स किवें आपां फॉर्म करांगे। ओए तो ऑफर एंड एक्सैप्टेंस होएगा। आई तो इंटेंशन वाले पॉइंट दे विच इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये पॉइंट्स ते जो हैगे ने तुहानू पिछे डिफाइन किए हुए हैं। LC तो होएगा लॉफुल कंसिडरेशन, ये जो सी है इस तो कैपेसिटी वाला पॉइंट लिखोगे, कैपेसिटी ऑफ पार्टी। F तो लिखोगे फ्री कंसेंट। LO लॉफुल ऑब्जेक्ट। P तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। निमोनिक यूज करके तुसी इस दियां एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ने जो इन्हों लर्न कर सकते होंगे। अदरवाइज जो कोई स्टूडेंट एज इट इज़ याद करना चाहता दैन यू कैन डू इट। सो जो मैं नाल बोल रही सी वीडियो रिवाइंड करके तुसी उदों लिख लैने ने सारे पॉइंट्स ने जो ट्रिक दे नाल, जां फिर पिछों तुसी मैच करके देख लेना। सो ये सी साडी अज दी क्लास। अगलियां क्लासेस दे विच भी आपां बाकी सारे सबजैक्ट्स दे एंड बिजनेस लॉ दे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर तो जो क्वेश्चनस ने उन्होंने डिस्कस करांगे। चैनल ज्वाइन कर लो, like and share this video and don't forget to share your valuable feedback in comment section. Thank you so much. Have a good day.